अनेक विग्रहங்களுக்கு நாங்கள் ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்தோம். उस जगह पर हमने कई एक अंधविश्वास में पड़े रहते थे. अनेक मधुபான அடிமைத்தனத்திலும் हम कई एक दारू पीने की आदतों में अनेक ஆன்ஸ் பான்பிராக்கு இப்படி अनेक போதை பழக்கங்களிலும் அடிமைப்பட்டிருந்தோம். कहीं नहीं बीड़ी सिगरेट गुटखा करके हमने कई एक नशा में थे. இப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலையிலே इस तरह का वातावरण में என்னை யார் விடுவிக்க கூடும் என்று अनेक विग्रह கோயிலுக்கு விரதம் இருந்திருக்கிறேன். मैं कई एक भगवान को मैंने पुकारा, मुझे कौन इस पाप से छुड़ाएगा. இதற்காக 60 நாட்கள் விரதம் இருந்து நான் இதுக்கு சபரிமலை என்ற ஒரு கோயிலுக்கு 60 நாள் விரதம் இருந்து நடைப்பயணமாக சுமார் 40 கிலோமீட்டர் நடந்து சென்றிருக்கிறேன். मैं इस कारण कई एक जगह पर जो है कि मैंने पैदल भी गया था. ஆனாலும் அங்கே போயும் எனக்கு விடுதலை உண்டாகவில்லை. वहां भी जाकर के मुझे छुटकारा नहीं मिला. அப்பொழுது என்னுடைய பாவம் அதிகரித்து கொண்டே போய் கொண்டுள்ளது. मेरा पाप और बढ़ते गई. இன்னும் நாளுக்கு நாள் குடி அதிகமாக நான் வந்து கொண்டே இருந்தேன். तो मैं अपना जो दारू पीने की आदतों से मैं बढ़ते रहा. என் குடும்பத்தில் முதலாவது பிறந்த நான் நல்ல ஒரு வேலைக்கு நல்ல படித்து நல்ல வேலையை போய் நல்ல சம்பாத்தியம் பண்ணி குடும்பத்தை காப்பாற்றுவேன் என்று நினைத்த எங்க குடும்பத்தில் तो मैं घर का पगला बेटा था. तो घर के लोगों ने सोचा ये पढ़ाई लिखाई करके अच्छा नौकरी पकड़ेगा. ஆனால் अनेक பாவங்களுக்கு அடிமையில் உள்ளாகினேன். लेकिन मैं कई एक पापों का गुलाम में चलेगी. பின்பு திருமணமானது. फिर मुझे शादी हुई. மனைவி ரட்சிக்கப்படவில்லை, நானும் ரட்சிக்கவில்லை. இரண்டு பேரும் சேர்ந்து अनेक விக்கிரக கோயில்களுக்கு சென்றுள்ளோம். मेरा पत्नी उधार नहीं पाई, मैं भी उधार नहीं पाया. लेकिन कई ஆனாலும் அங்கே சென்று हमने जाके शांति खोजे. ஆனாலும் அங்கே சென்று எங்களுக்கு விடுதலை ஆகவில்லை. वहाँ भी मुझे कोई किसी तरह का शांति नहीं मिली. சில மாதங்கள் போனது, சில வருடங்கள் போனது. कुछ ही महीना चला गया, साल भी बीत गई. குடும்பத்துக்குள்ள अनेक பிரச்சனைகள், சண்டைகள், சலசலப்புகள் பிரச்சனைகளாகவே இருந்தது. परिवार में बहुत सारे समस्या संकट हमेशा पड़े रहता था. இதனால சமாதானமற்ற நிலைமையில் நாங்கள் காணப்பட்டோம். इस कारण हमने बिना शांति क्यों रहते थे. நல்ல வேலை இருந்தது, நல்ல சம்பாத்தியம் இருந்தது, ஆனால் மனதில் சமாதானம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை. अच्छे जो कमाई था लेकिन हमारा जीवन में शांति नहीं था. இதனால் நாளுக்கு நாள் அதிகமான துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருந்தோம். அப்பொழுது நாங்கள் என்ன செய்வதென்று அறியாமல் अनेक நாட்கள் நாம யார் விடுவிக்க கூடுமோ என்று நாங்கள் அழுத காலங்கள் உண்டு. तो हमने बहुत सारे बंधन में पड़े रहते थे और ऐसा रोते थे कि हमें कौन इस बंधन से छुड़ाएगा. அப்பொழுது எனக்கு தெரியாமலே எனது மனைவி இயேசுவை நேசிக்கிறாள் என்பதை நான் சில நாட்கள் கழித்து அறிந்து கொண்டேன். मेरा पत्नी गुप्त रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके वो प्रभु से प्रार्थना करती थी. मैं नहीं जानता था, फिर बाद में मुझे पता चला. அப்பொழுது என் மனைவியிடம் நான் சொன்னேன், இந்த இயேசு யாரு தெரியுமா? இவர் வெளிநாட்டு கடவுள், இவரை ஏன் நீ வணங்குகிறாய்? இவர் வணங்க கூடாது என்று நான் கண்டித்திருந்தேன். तो मैंने मेरा पत्नी को डांटा कि ये यीशु मसीह विदेशी धर्म का भगवान है, आप इसके ऊपर क्यों विश्वास करती है? इसे तुमने विश्वास नहीं करना है करके मैं अपना पत्नी को डांटते थे. சில நாட்கள் போனது, எனக்குள்ள ஒரு अनेक மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது. இது ஏன் ஏற்பட்டது என்றால் अनेक நாட்களாக எனக்காக டெய்லி ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தால், ஆனா எனக்கு தெரியாமலே. लेकिन मेरा पत्नी मेरे लिए लगातार प्रार्थना करती थी. मुझे नहीं पता था. इस कारण मेरा जीवन में कई एक परिवर्तन धीरे धीरे आते रही. வேலைகளில் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தது. அந்த பிரச்சனையினால் அந்த வேலையை விட்டு நான் வெளியே வர வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டேன். तो कमाई जहां मेरा नौकरी था वहां पर एक बहुत बड़ा संघर्ष समस्या खड़ा हुआ. इस कारण हम नौकरी छोड़कर लौटना पड़ा. அப்பொழுது நான் வேறொரு கம்பெனியில வேலைக்கு சேர்ந்த பொழுது அந்த கம்பெனியில் இருந்த அந்த மற்ற ஓனரிடம் எங்க முன்னாள் ஓனர் பேசினார், இவனை வேலைக்கு இந்த இடத்தில் சேர்க்க கூடாது, சேர்த்தால் பெரிய பிரச்சனை ஏற்படும் என்று பயமுறுத்தினார்கள். तो मैं दूसरा कंपनी में जाकर के नौकरी खोजे तो पुराना कंपनी का मालिक ने उनको फोन करके बोल दिया कि इसको वहां नौकरी नहीं देना, बल्कि देंगे तो बहुत ही लफड़ा होगी. ஒரு பக்கம் எங்களுக்கு குடும்பத்துல பிரச்சனை, இரண்டாவது பிரச்சனை எதிரிகள் மூலமாக अनेक பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பித்தது. हमारा परिवार में कई एक समस्या, साथ ही साथ हमारा जो बाहर के लोगों के द्वारा भी कई विरोध की बातों को सामना करना पड़ा. இப்படியே अनेक நாட்கள் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது என் மனைவி ஒரு நாள் என்னிடத்தில் பேசினார், நீ இயேசுவை நம்பு, இயேசுவை நம்பினால் நிச்சயமாக இதிலிருந்து நம்மளுக்கு ஒரு விடுதலை தருவார் என்று சொன்னார். तो इस कारण हमने जो है कि मेरा पत्नी में बहुत दिन के बाद हमसे बोली कि तुम प्रभु पर विश्वास करो.
நான் முடியாது என்று சொல்லி அந்த நாட்களிலே अनेक अंतरंग பாவங்களுக்குள் நான் உள்ளானேன். मैंने इनकार कर दिया बिल्कुल और मैं गुप्त पापों में चला गया. 2022 ஆண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதியிலே तो 2022 का जनवरी 1 तारीख को जो है ஒரு போதகரை என் மனைவி சந்தித்து இந்த காரியங்கள் எல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அப்பொழுது நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லி என் மனைவி அவரிடம் சொல்ல तो मैं एक पादरी के द्वारा मैं मेरा पत्नी जो है पादरी के पास जाकर के इस तरह की कहने लगी. உன் கணவர் अनेक பாவங்களில் இருக்கிறார், ஆனால் அவர் விடுதலைக்கு இயேசுவால் மாத்திரம்தான் கூடி என்று சொன்னார். ஆனால் நான் எந்த பாவத்தை செய்தேனோ அந்த பாவத்தை சொல்லி அனுப்பினார் அந்த இடத்துல. तो मेरा पत्नी को पादरी ने तेरा पति जो है बहुत ही पाप में फंसा हुआ है, वो कौन सा पाप में फंसा हुआ है इसको भी भविष्यवाणी के रूप में मेरा पत्नी को बोल करके भेजा. எனக்கு ஒரே பயம் உண்டாயிற்று. இது எப்படி நாம் अनेक இடத்துல மந்திரவாதிகள் இடத்துல போய் இருக்கிறோம், ஜாதகர் இடத்துல போய் இருக்கிறோம். அவர் அப்பதான் சொல்லுவாரு உனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது, உனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது, இந்த பாவத்தில் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஆனா யாருன்னே தெரியாத ஒரு போதகர், கிறிஸ்துவ போதகர் என்னுடைய நிழல் காலத்தில் இருக்கிற எல்லா அந்தரங்க பாவத்தையும் அவர் சுட்டி காட்டினார். அப்பொழுது எனக்கு பயம் உண்டாயிற்று. मुझे डर लगने लगा कि कहीं कितने हम तंदर मंदर के यहाँ गए, इस तरह का भविष्यवाणी कोई नहीं बोला, लेकिन ये जो व्यक्ति मुझे कभी नहीं देखा, ये व्यक्ति मेरे बारे में कैसे जान गया और बता दिया. இப்படி ஒரு கடவுள் இருக்கிறாரா என்று அப்பொழுது என் உள்ளத்துல ஒரு பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு நான் கர்த்தரை சேவிக்கலாமா வேணாமா என்று இருமனதோடு எப்படி நாம் இத்தனை வருடங்களாக நாங்கள் விக்கிரக ஆராதனையில் இருந்து நாம் எப்படி இந்த இயேசு இடத்தில் நாம போகுவோம் என்று எனக்குள்ள ஒரு மிகுந்த ஒரு கலக்கமும் பயமும் உண்டாயிற்று. तो मेरे अंदर इस तरह का बहुत बड़ा घबराहट आया, पर मुझे अंदर में संघर्ष आया कि मैं यीशु को मानूं या ना मानूं, जानूं या ना जानूं, करूं या ना करूं. என் மனைவி என் தலையின் மேல் கை வைத்து ஜெபம் பண்ணினாள். நீ பயப்படாதே, கர்த்தர் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார். இந்த விக்கிரகங்கள் ஏமாத்திரம், இந்த கட்டுகள் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஏமாத்திரம், கர்த்தர் நிச்சயமாக நம்மளை விடுதலையாக்குவார் என்று என் மனைவி என் தலையின் மேல் கை வைத்து ஜெபம் பண்ணினாள். मेरा पत्नी मेरे ऊपर मेरा सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करने लगी कि तुम डरो मत, परमेश्वर हमारे साथ है, ये सारा दुनिया का समस्या हमें क्या कर सकता है. கடந்த 2022 ஆண்டு ஜூலை மாதம் 25ஆம் தேதியிலே நான் இயேசுவை முழு இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அன்றைய தினத்திலே ஞானஸ்தானம் எடுக்க தேவன் எனக்கு கிருபை பாராட்டினார். हम 2022 में जुलाई महीना 20 तारीख को प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता का रूप में ग्रहण करके मैं बाइबल पकड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए. அதிலிருந்து கர்த்தர் எங்களுக்கு ஒரு பூரண விடுதலை கொடுத்தார், நல்ல ஒரு சமாதானத்தை கொடுத்தார், எங்களுக்குள்ள நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுத்தார். எனக்குள்ள இருந்த அந்தரங்க பாவங்கள் எல்லாம் மறைந்து போயின. मेरे अंदर का सारा गुप्त पापें दूर हो गई और शांति मेरा परिवार में आ गई और मेरा पत्नी से मैं ज्यादा प्यार करने लगे और हम प्रभु में आगे बढ़ते रहे. இன்றைக்கு எத்தனை பேர் இதுல ஆண்கள் இல்லாத இருக்க பெண்கள் இருக்கிறீர்கள், ஆனாலும் உங்க கணவனை குறித்தோ உன்னை மகனை குறித்தோ நீங்க எத்தனை பேர் நீங்கள் அங்கலாய்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். आज यहाँ पर बहुत सारे बहन लोग हैं, पुरुष लोगों की कमी है, लेकिन आज कितने सारे बहन लोग अपने पति के विषय में, अपने बच्चों के विषय में इतनी सारी बातों को चिंता करते हैं. என் மனைவியை கொண்டு எனக்கு ஒரு விடுதலை கொடுத்த இயேசு இன்றைக்கு உங்களை கொண்டு உங்கள் கணவனையோ இல்ல மகனையோ மகளையோ நிச்சயமாகவே ஒரு விடுதலையாக்க உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். मेरा पत्नी के द्वारा मुझे छुड़ाया, वैसे ही परमेश्वर आज आपके द्वारा आपका परिवार के, आपका पति से हो, कुछ भी हो, या आपका बाल बच्चे आपका बात नहीं मानते हैं, लेकिन आपके द्वारा परमेश्वर आपका घर में बड़े काम करेगा. எத்தனையோ பாவத்திலும் விக்கிரக கட்டிலும் சாப கட்டிலும் பாவ கட்டிலும் இருந்த என்ன இன்றைக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி என்னை இந்த இடத்துல ஒரு ஜெபம் பண்ண முடியா இன்றைக்கு சாட்சியாய் நிறுத்தின தேவனுக்கு கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறேன். तो आज यहाँ पर आकर के आपके बीच में आज मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन आज प्रभु के लिए आपके बीच में आके गवाही देने के लिए हिम्मत भी देकर के खड़ा किया. நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்ற வசனம் சொல்லுகிறது. அப்படியாக நீங்கள் உண்மையாலுமே விசுவாசித்தீர்களானால் ஒரு மனைவியினுடைய ஜெபம் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து இந்த ஜார்க்கண்ட் இந்த இடத்துல என்னை கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறது ஒரு மனைவியினுடைய ஜெபம் என்றால் நிச்சயமாகவே உங்களை கொண்டு अनेक அற்புதங்களை அடையாளங்களை கர்த்தர் செய்வார். तो मेरा पत्नी का प्रार्थना के द्वारा आज मुझे तमिलनाडु से परमेश्वर ने झारखंड को लेके आया, लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा भी आपके गांव में, आपके अगल बगल में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? कितने लोग विश्वास करते हैं? இந்த சாட்சிதாமே தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். गवाही को प्रभु आशीष करें. ताली बजा के हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होवे.
और हम एक गीत गाएंगे हमारा बीच में हालेलुया। दान उठा लिया गया नहीं हुआ। हम दान का गीत गाएंगे, उस समय हम प्रभु के लिए दान देंगे। दान के लिए गीत गाएंगे, प्रभु के लिए दान देंगे। दान लेने वाले दौड़ के सामने चले आएंगे। आपके हाथ में जो लिफाफा है आज आप उसको जमा करें। आपका प्रार्थना निवेदन आप उसमें लिखें और आपको लिफाफा का जरूरत है, बगल लोगों से आप ले सकते हैं। लिफाफा दे देना, रोशन लिफाफा दे देना। दान पेटी बगल लोग जो दान उठाते हैं वो लिफाफा लेकर के आए और लिफाफा को भी लेकर के जाएं। जिसकी जरूरत है तो आप उसमें उचित एक दान प्रभु के लिए दे सकते हैं। बार बार देने का मौका नहीं है। उत्तम से उत्तम एक दान प्रभु के लिए आप चढ़ा सकते हैं। ये आपका एक मौका है बोने का। हालेलुया। बोने का एक मौका है ताकि आप कटनी करेंगे, इसलिए आप अभी भी लिफाफा ले सकते हैं। धन्यवाद। सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और एक गीत गाकर हम प्रभु की महिमा कर इसी के साथ हम भेंट अर्पण करेंगे। हालेलुया। सभी लोग कष्ट करेंगे, उसके बाद तो आपको बैठना ही है और दान डालते जाएंगे, अपने स्थान में फिर से बैठते जाएंगे। हालेलुया राजा। प्रेम प्रेम कहना दुनिया में नहीं रे, प्रेम प्रेम कहना दुनिया में नहीं रे, यीशु बिना कहाँ तो के मिली रे भैया, मसीह बिना कहाँ तो के मिली रे बहिन। सब लोग ताली बजाते हुए ताली बजाएंगे, सब बजाएंगे सब लोग। प्रेम प्रेम कहना दुनिया में नहीं रे, प्रेम प्रेम कहना दुनिया में नहीं रे, यीशु बिना कहाँ तो के मिली रे भैया, मसीह बिना कहाँ तो के मिली रे, यीशु बिना कहाँ तो के मिली रे भैया, मसीह बिना कहाँ तो के मिली रे बहिन। इसमें आहे भयानक प्रेम, दुनिया में आहे बहिन दुए दिनक प्रेम, इसमें आहे भयानक प्रेम, दुनिया में आहे बहिन दुए दिनक प्रेम, प्रेम प्रेम कहना दुनिया में नहीं रे, प्रेम प्रेम कहना दुनिया में नहीं रे, यीशु बिना कहाँ तो के मिली रे भैया, मसीह बिना कहाँ तो के मिली रे बहिन, यीशु बिना कहाँ तो के मिली रे भैया, मसीह बिना कहाँ तो के मिली रे बहिन।
यीशु में मिलेला पाप क्षमा उधारे। दुनिया में ये रे बहन कहीं नहीं मिली। क्षमा क्षमा कहना दुनिया में नहीं रे, क्षमा क्षमा कहना दुनिया में नहीं रे। यीशु बिना कहाँ तो के मिली रे भैया, मसीह बिना कहाँ तो के मिली रे बहन। यीशु बिना कहाँ तो के मिली रे भैया, मसीह बिना कहाँ तो के मिली रे बहन। यीशु कर लहू भैया पाप धोई देवी, मासी कर लहू बहन मान सूत करी। यीशु कर लहू भैया पाप धोई देवी, मासी कर लहू बहन मान सूत करी। दया दया कहना दुनिया में नहीं रे, दया दया कहना दुनिया में नहीं रे। यीशु बिना कहाँ तो के मिली रे भैया, मसीह बिना कहाँ तो के मिली रे बहन। यीशु बिना कहाँ तो के मिली रे भैया, मसीह बिना कहाँ तो के मिली रे बहन। प्रेम प्रेम कहना दुनिया में नहीं रे, प्रेम प्रेम कहना दुनिया में नहीं रे। यीशु बिना कहाँ तो के मिली रे भैया, मसीह बिना कहाँ तो के मिली रे बहन। यीशु बिना कहाँ तो के मिली रे भैया, मसीह बिना कहाँ तो के मिली रे बहन। यीशु बिना कहाँ तो के मिली रे भैया, मसीह बिना कहाँ तो के मिली रे बहन। प्रेम प्रेम कहना दुनिया में न करे, प्रेम प्रेम कहना दुनिया में न करे। यीशु बिना कहाँ तो के मिली रे भैया, मसीह बिना कहाँ तो के मिली रे बहन। यीशु बिना कहाँ तो के मिली रे भैया, मसीह बिना कहाँ तो के मिली रे बहन। यीशु बिना कहाँ तो के मिली रे भैया, मसीह बिना कहाँ तो के मिली रे बहन। यीशु बिना कहाँ तो के मिली रे भैया, मसीह बिना कहाँ तो के मिली रे बहन। यीशु बिना कहाँ तो के मिली रे भैया, मसीह बिना कहाँ तो के मिली रे बहन। यीशु बिना कहाँ तो के मिली रे भैया, मसीह बिना कहाँ तो के मिली रे बहन। हमारे बीच में आदरणीय परमेश्वर के दास पास्टर राजेश हैं, आगे आएंगे और इस भेंट के लिए प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे और वचन के लिए भी। आइए हम लोग प्रार्थना करें।
महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। हमारी स्तुति प्रशंसा महिमाओं को आपने सुना प्रभु, आराधना को आपने सुना है प्रभु। आपको लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस भेंट दान के लिए धन्यवाद देते हैं जो अपने भंडार से निकाल करके प्रभु आपकी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए हम हर एक माता पिता भाई बहन लोग प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ाएं प्रभु। हर एक का जीवन में आशीष कीजिए, हर एक का जीवन में तरक्की और उन्नति दीजिए प्रभु जी। हर एक इस प्रभु जी हमारे एक जीवन में जो भी कमी घटी है यीशु के नाम से वो भर दिया जाए, ताकि अगले दिनों में और भी बढ़कर आपके महिमा के लिए हाथ बढ़ा सके राजा। धन्यवाद देते हैं सुंदर भेंट के लिए, दान के लिए परमेश्वर। इस समय जब आपके पवित्र वचन की ओर जाते हैं प्रभु, आपका इच्छा हमारे एक जीवन में पूरा हो। अपने दास को आत्मा के समर से भर के प्रभु हमारे एक जीवन में जो भी जरूरत है पिता उस बातों को प्रकट कर। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना को सुना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग ये गीत गाएंगे, बहन लोग एक दो जन आ जाएंगे, कोयर टीम। खोजो ना वो है प्यार रे, 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 प्यार रे। खोजो ना वो है प्यार रे, 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 प्यार रे। छोड़ ले लो यीशु के प्यार, छोड़ दे लो पापी संसार। छोड़ ले लो यीशु के प्यार, छोड़ दे लो पापी संसार। छोड़ ले लो प्यार, छोड़ दे लो पापी संसार। खोजो ना वो है प्यार रे, खोजो ना वो है प्यार रे, खोजो ना वो है प्यार रे, खोजो ना वो है प्यार रे।
नगर। ले लो यीशु फिर डहर संगे जब रे यीशु फिर नगर। ले लो यीशु फिर डहर संगे जब रे यीशु फिर नगर। हो जो ना वो है प्यार रे, हो जो ना वो है प्यार रे, हो जो ना वो है प्यार रे, हो जो ना वो है प्यार रे। मानव फिर दितंग पायल फिर चुन, कोयल फिर कुहो, कोयल फिर कुहो, यीशु फिर कीर्ति गवाता, यीशु फिर कीर्ति गवाता। मानव फिर दितंग पायल फिर चुन, कोयल फिर कुहो, कोयल फिर कुहो, यीशु फिर कीर्ति गवाता, यीशु फिर कीर्ति गवाता। जो ना वो है प्यार रे, 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 प्यार रे। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे और हम बैठ जाएंगे। हम खास समय के पास, खास समय के ओर हम जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। ये को ज्यादा हालेलुया। हालेलुया। ये को पूरा काट दीजिए। हालेलुया। हाँ बस आवाज आवाज उठाइए। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और हालेलुया। हालेलुया। हले बस हालेलुया। ठीक। प्रेज द लॉर्ड। ठीक। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आमीन। हालेलुया। इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है मार खाते समय मुस्कुराने वाला, मसीह लोग है। हमें गाली सुनते समय हंसने वाला एक ही जाति है, वो मसीह जाति के लोग हैं। हम लोग नाराज होते हैं क्या? हाँ? गाली, जो गाली देता है उससे हम प्यार करेंगे और मुस्कुराते हुए गाली सुनेंगे। हमें आइए हम परमेश्वर का वचन की ओर हम जाएंगे। कितने लोग परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं? बस हालेलुया। अपने से बोल, हमको बोलना पड़ेगा। अभी हमारा गाड़ी बंद हो गई, धक्का देते हैं, वैसे धक्का देना पड़ेगा ना। हालेलुया। बोलो बोलो बोलो। धक्का देने वाला गाड़ी है आप लोग। हाँ? कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार है? हाँ, अपने से हालेलुया आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के महान दास पास्टर चार्ल्स रवि कुमार को ऊंचे तालियां बजा के हम उनका स्वागत करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. காத்திருந்தவர்கள் பலனடைந்தார்கள். जो यहोवा का बाट जोहा वो बल पाया है। பலனடைந்து உயர எழும்பினார்கள். वे बल पाकर और
उड़ के गए। இன்றைக்கு காத்திருக்கிற நீங்கள் பலன் அடைந்து உயர எழும்ப போகிறீர்கள். आज प्रभु का बाट जोहने वाले और ऊंचे उठा लिए जाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। தொடர்ந்து இந்த நாளிலும் எங்களை அழைத்து இந்த ஜார்க்கண்ட் மாவட்டத்திலே அவருடைய ஊழியத்தை செய்யும்படியாக எங்களை அழைத்து பாஸ்டர் மைக்கேல், பாஸ்டர் அம்மா, அதே போல பாஸ்டர் சாமுவேல் ஐவன் அவங்க யாவருக்கும் ஆண்டவர் இயேசு நாமத்தினாலே நன்றிகளை நாங்கள் உரித்தாக்கிக் கொள்கிறோம். आज भी परमेश्वर के सेवकाई को करने के लिए हमारा तो परमेश्वर का दास पास्टर माइकल, पास्टर सैमुअल आइवन, पास्टर माइकल का धर्मपत्नी और उनके सारे दल के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। அதே போல அவருடைய உடன் ஊழியர்கள் உற்சாகமாய் அவர்களோடு இணைந்து ஊழியம் செய்கிறதுல நாங்கள் அவர்களை பாராட்டுகிறோம், அவர்களுக்கு வாழ்த்துதலை தெரிவிக்கிறோம். और उनके साथ में जितने लोग और इस सेवकाई में काम करते हैं बड़ी उत्साहित से करते हैं, उनका उत्साहित के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। डाउन करिए, इसको थोड़ा बढ़ाइएगा। ठीक। அதே போல உங்களை சந்திப்பதில் अब वैसे कि आपसे मिलकर நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். हम बहुत खुश हैं, बस हो गया। ஆனாலும் சற்று வருத்தம் உண்டு. फिर भी हमारे लिए थोड़ा सा एक दुख भी है। உங்களுடைய அன்பு, நீங்கள் என் மீது பாராட்டின அந்த ஒவ்வொருடைய உபசரிப்பு இவைகளை பார்க்கும் பொழுது இங்கேயே இருந்து விடலாமோ என்று சொல்லி யோசிக்கிறோம். आपका प्रेम, स्वागत और आपका जो प्रेम है ये सबको देखकर हमें लगता है हम लोग यहीं रहने का मन कर रहा है। நாங்கள் வந்ததிலிருந்து பாஸ்டரும் அம்மன் பாஸ்டர் மேல எங்களை ரொம்ப அம்மன் அன்போடு உபசரித்து கவனித்துக் கொண்டார்கள். என்னுடைய ஊழியத்தின் சார்பாக நாங்கள் வந்திருக்கிற யாவரும் கரங்களை தட்டி பாஸ்டர்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். हम हमारे जो पास्टर माइकल के लिए धन्यवाद देता हूँ कि और उनका धर्मपत्नी सब मिलके जब तक हम लोग यहाँ आए तब तक अच्छे हमें पहुनाई करके रखे हैं, इसके लिए धन्यवाद। கர்த்தருக்கு சித்தமானால் மீண்டும் ஒரு முறை வர தேவன் நமக்கு வாய்ப்பை தருவாராக. प्रभु का अगर इच्छा होगी फिर से आपके बीच में मैं जरूर आऊंगा। தொடர்ந்து கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்வோம். परमेश्वर का वचन की ओर हम जाएंगे। செய்திக்கு ஆதாரமாக மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷம் हम परमेश्वर का संदेश के लिए मरकुस रचित सुसमाचार 6ஆம் அதிகாரம் 6वां अध्याय 56ஆம் வசனத்தை அடியேன் வாசிக்கிறேன். 56 वचन को हम पढ़ेंगे। और जहाँ का वह गांव, नगरों और बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रख कर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। आमीन। அவரை தொட்ட யாவரும் சுத்தமானார்கள். जितने ने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। அவரை தொட்ட யாவரும் சுத்தமானார்கள். जितनों ने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு நம்மை தொடுகிறவர். आपके और हमारे परमेश्वर आपको छूने वाला है। சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர், सर्वशक्ति महान परमेश्वर, அகில உலகத்தையும் படைத்தவர், सर्वशक्ति महान அந்த परमेश्वर, சராசரங்களையும் படைத்தவர், सारा सृष्टि का சர்வ विराजमान லோகாதிபதியாகிய தேவன், और राजाओं का राजा यहोवा परमेश्वर, மரணத்தை ஜெயித்தவர், मृत्यु से विजय पाया, பாதாளத்தை ஜெயித்தவர். अधलोक को जीता। அவ்வளவு பெரிய தேவனாக இருந்தாலும் उतने बड़े महान परमेश्वर होने के சிறியவர்களாகிய बावजूद நம்மை, हम छोटे होकर के எளியவர்களாகிய நம்மை, हम नम्र और हम दीन के लोग जो है நம் அருகில் வந்து हमारे- நம்மை தொடுகிற தேவனாக இருக்கிறார். हमारा नजदीक आके हमें छूने वाला परमेश्वर है। அங்கே சொல்லப்படுகிறது, वहाँ कहा जाता है, அவர் தொட்ட யாவரும் சுத்தமானார்கள். लिखा है कि जितनों ने उसे छुआ सब चंगे हो जाते थे। கரங்களை தட்டி நல்ல தேவனை மகிமைப்படுத்துவோமாக. ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। அதே போல மத்தேயு 14ஆம் அதிகாரம் 35 36 நம்ம வாசிக்க முடியும்.
तो वैसे ही मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 35 और 36 में भी देख सकते हैं। பிணியாளிகள் எல்லாரும் அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். तो सारे बीमारों को उनके पास लेके आते थे। அவர் அவர்களை தொட்ட பொழுது அவர்கள் சுஸ்தமடைந்தார்கள். जैसे उसने उन लोगों को छुआ तो वे चंगे हो गए। சர்வவல்லமை தேவனாகிய ஆண்டவர், सर्वशक्ति महान परमेश्वर இந்த நாளிலே உங்களை தொட்டு உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்க விரும்புகிறார். आज का दिन परमेश्वर आपको छूकर चंगाई देना चाहता है। எப்பேற்பட்ட நிலைமையில வந்திருந்தாலும் जैसा भी இயேசு உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க விரும்புகிறார். जैसा भी परिस्थिति में अगर आप आए होंगे प्रभु आपको चंगा करेगा। जैसा उसने आपको छुएगा, அவர் தொட்ட மாத்திரத்திலே விடுதலை அடைந்தார்கள். जैसे उसने छुआ तो चंगा पा गया। இன்றைக்கு இந்த இடத்துல வந்திருக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, यहाँ पर आए हुए परमेश्वर के लोगों, ஆண்டவராகிய இயேசுவுடைய கரம் வல்லமை உள்ளது. प्रभु यीशु मसीह का हाथ महान है। அவருடைய கரம் தழும்புகளுள்ள கரம். उनका हाथ घायल किया हुआ घात है। அது கிரகிக்க முடியாத காரியங்களை செய்கிற கரம். वो बहुत भयानक काम करने वाला हाथ அது உம்மை है। தேற்றுகிற கரம். वो आपको ढाढ़स बांधने वाला हाथ ஆணி है। வாய்ந்த கரம். वो कील टोका हुआ हाथ அந்த है। கரம் இன்றைக்கு உன்னை தொட போகிறது. वो हाथ आपको छूने जा रहा है। ஹalleluya. हालेलुया। அதே போல வேதத்திலே மத்தேயு 8ஆம் அதிகாரத்திலே அங்கே ஒரு குஷ்டரோகி குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம். तो वैसे ही वहाँ पर मत्ती 8वां अध्याय में एक कुष्ठ का व्यक्ति को देखते हैं। குஷ்டரோகி ஒருவன் அந்த அவனை ஆண்டவராய் பணிந்து கொண்டு, ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்கு என்று சொன்னார். 2 वचन में लिखा है कि देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। இயேசு தமது கையை நீட்டி यीशु ने हाथ बढ़ाकर அவனை தொட்டார். उसे छुआ। இங்கே சொல்லப்படுகிறது இவன் குஷ்டரோகி. यहाँ लिखा हुआ है वो कुष्ठ व्यक्ति है। அந்த நாட்களில் குஷ்டரோகி என்று சொன்னால் ஒதுக்கப்படுகிறவன். उन दिनों में कुष्ठ व्यक्ति का मतलब है उसे इनकार करने वाला व्यक्ति, புறக்கணிக்கப்படுகிறவன், उसको निकम्मा करने वाले व्यक्ति, ஊரை விட்டு புறம்பே வைத்து விடுவார்கள். गांव से अलग रखने वाला व्यक्ति। அப்படிப்பட்ட நிலைமையில இருக்கிற ஒருவனை ऐसा परिस्थिति में एक व्यक्ति को யாரும் அருகில் வரமாட்டார்கள். कोई सामने नहीं आएंगे, யாரும் அவனை நேசிக்க மாட்டார்கள். कोई उससे प्यार नहीं करेंगे, யாரும் அவனிடத்தில் அன்பு செலுத்த மாட்டார்கள். कोई उनसे प्रेम नहीं करेंगे, யாருமே நேசிக்காமல் போனாலும், कोई भी उनसे प्रेम ना करें फिर भी, யாருமே அருகில் வராமல் போனாலும், कोई उनके सामने नहीं आएंगे तो ஆண்டவராகிய இயேசு प्रभु यीशु அவன் अருகிலே வந்தார். उनके सामने चले आया, அவனை தொட்டார். उन्हें छुआ, அவன் சுஸ்தமடைந்தான். उसने चंगा हो गया। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். இன்றைக்கு இந்த இடத்துல வந்திருக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, यहाँ पर आए हुए परमेश्वर के लोगों, யாராலும் நேசிக்கப்பட முடியாத ஒரு நிலைமையில வந்திருக்கலாம். शायद आपने किसी से प्यार करने का लायक में नहीं आए होंगे, யாருமே என்னிடத்தில் அன்பு செலுத்தவில்லை. कोई भी आपसे प्रेम नहीं करता होगा, நான் ஒதுக்கப்பட்ட நிலைமையில இருக்கிறேன். बिल्कुल मैं अकेला हो गई நான் हूँ, புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலைமையில मैं இருக்கிறேன். बिल्कुल निकम्मा हो गई हूँ। யார் எனக்கு உதவி செய்வார்கள்? कौन मुझे सहायता करेगा, யார் என்னை நேசிப்பார்கள்? कौन मुझे प्यार करेगा। அங்கலாய்த்து வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, आप उदासी में आए நீ होंगे, எவ்வளவு சூழ்நிலையில் வந்திருந்தாலும், जैसा भी परिस्थिति में आए होंगे, அழுக்கடைந்த சூழ்நிலையில் வந்திருந்தாலும், आप मलिन के साथ आए होंगे, உன்னையும் நேசிக்கிற ஒரு இயேசு இருக்கிறார். आप- அவர் இன்றைக்கு உன்னை தொட விரும்புகிறார். आपसे प्यार करने वाला वो एक है, वो यीशु है, वो आपको छूना चाहता है। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। அந்த குஷ்டரோகி தொட்ட மாத்திரத்திலே சுகம் அடைந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. जैसा उसने कुष्ठ व्यक्ति को छुआ, उसने तुरंत चंगे हो गया। இந்த இரவு நேரத்தில் आज रात के वेला में அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில वैसा परिस्थिति में கண்ணீரோடு, आंसू के साथ வேதனையோடு, और दुख के साथ அங்கலாய்ப்போடு வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, बड़ी संघर्ष के साथ आए होंगे। விசுவாசிக்க கூடுமானால் यदि तू विश्वास करेगा, இயேசு உன்னை தொடுகிறார். यीशु आपको छुएगा। இன்னைக்கு நீ விடுதலையாகி போக போகிறார். आज भी आपको परमेश्वर छुटकारा दे के भेजेगा। हालेलुया। हालेलुया, ஆமென். आमेन। அது மாத்திரமல்ல, न केवल वो है, கொன்னை வாயை உடைய ஒருவன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. கொன்னை வாயை உடையவன். மார்க்கு मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 32-33 और उसका 32 और 33 को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है वो व्यक्ति कैसा है। तो लोगों ने हम्म, एक बहरे को जो हकला भी था हाँ,
उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। हाँ, तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया। वो हकला मुंह वाला एक बहिरे हकला था और उसे उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। கொன்னை வாயை உடையவன், ये हकला व्यक्ति है। கொன்னை வாடையவன் என்று சொன்னால் அவனுடைய வாயில துர்நாற்று வீசுமாம்। तो हकला का मतलब है वो बहिरा भी है, पीप पुगता है और उसका मुंह में गंदगी निकलता है। அவன் ஈறுகளிலே சீல்வடியும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது। तो उनके कान में पीप गिरने वाला व्यक्ति था। மிகவும் வலி வேதனையோடு இருக்கக்கூடியவன், बहुत दर्द में रहने वाला व्यक्ति था। பேச முடியாதவன், मुख खोल के बात नहीं कर पाता திக்கி है। திக்கி பேசக்கூடியவன், वो माने उसने जो है गुंगा टाइप का बोलने वाला। இப்படிப்பட்ட ஒருவனிடத்தில் யார் அருகில வந்து பேசுவார்கள்? ऐसा महकने वाला व्यक्ति के पास कौन आकर के बात करेगा? அவன் பேசினாலே துர்நாற்றம், वो मुंह खोलते ही महकेगा। வாய் திறந்தால் சீல்வடிகிறது, उसका कान से पीप गिर रहा है। வலி வேதனையோடு இருக்கிறான், बड़ी दर्द के साथ रहता है, பேச முடியாதவனாய் இருக்கிறான்। मुंह खोल नहीं पाता है। ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, लेकिन परमेश्वर का वचन कहा, यीशु मसीह கொன்னை வாய் உடையவனை हाँ, அருகில வந்து தொட்டார்। ऐसे व्यक्ति को उसने आकर हाथ उस पर रखा। ஹalleluya, हालेलुया। அவன் அவர் தொட்ட மாத்திரத்தில் கொன்னை வாய் உடையவன் சுகமடைந்தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது। जैसा उसने छुआ वो चंगे हो गया। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya। हालेलुया। நீ இன்னைக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையில आज आपका जिंदगी में துர்நாற்றம் வீசப்படுகிற நிலைமையில, अगर आपका जीवन में அழுகி போன நிலைமையில, अगर आपका जिंदगी सड़ गया हो, ஜீவியம் நாற்றமெடுத்த நிலைமையில आपका जिंदगी நீ महकता இன்னைக்கு हो, கடந்து வந்திருந்தாலும் अगर आपका உன் जिंदगी வாழ்க்கையை தொட இயேசு விரும்புகிறார்। आप यहाँ पर आए होंगे तो आपको प्रभु जो है छूना चाहता है। உன் ஜீவியத்தை தொட விரும்புகிறார், आपका जीवन को छूना चाहता है, பிள்ளைகளை தொட விரும்புகிறார்। आपके बच्चों को छूना நீ चाहता है। சுகமடைந்து போக போகிறாய், आज आप चंगा होके जाएंगे, விடுதலை அடைந்து போக போகிறாய்। आप छुटकारा पाके जाएंगे। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। praise the Lord, Praise the Lord. ஆமென்। आमेन। அது மாத்திரமல்ல, न केवल वो है, மத்தேயு 20ஆம் அதிகாரம், Matthew chapter 20 31 to मत्ती 34, सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, அங்கே இரண்டு குருடர்கள் வழி அருகே இருக்கிறார்கள்। वहाँ पर दो अंधे रास्ता में थे, கண்ணு தெரியவில்லை, आंखें दिखाई नहीं दे रही है, பாதை தெரியவில்லை, रास्ता दिख नहीं रहा நான் है। எப்படி என் வாழ்க்கையை நடத்துவேன், वो कहता है कि मैं कैसे अपना जीवन எதிர்காலம் व्यतीत எப்படி करूंगा, இருக்கும், मेरा भविष्य क्या होगी, ஒன்றும் தெரியவில்லை। कुछ ही उसको दिखाई नहीं दे रहा है, அவனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, கண்கள் குருடாக்கப்பட்டிருக்கிறது। आंख अंधा है। இப்பொழுது அவன் இயேசுவே என்று அழைக்கிறான், वो अभी यीशु करके बुलाता है, அங்கே அதட்டுகிறார்கள், वहाँ लोग डांट रहे हैं, அங்கே தடை वहाँ உண்டாக்கப்படுகிறது। एक रुकावट आ रही है। இயேசுவை நெருங்கும் பொழுது அவனுக்கு அங்கே பல போராட்டங்கள் வருகிறது, यीशु पर नजदीक आते समय उसको समस्या आ रही है, தடை உண்டாகிறது। रुकावट आ रही है। அவனால் இயேசுவின் அருகிலே போக முடியாதபடி பலவிதமான போராட்டங்களும் தடைகளும் உண்டாகிறது। प्रभु के पास नजदीक पहुंचने के लिए कई एक संघर्ष को सामना करना पड़ रहा है। ஆனாலும் फिर भी இந்த குருடன் ये अंधा ने தன்னை அடக்கிக் கொள்ளவில்லை, अपने आप को वो चुप नहीं रख सका தடைகள் மத்தியிலும் இயேசுவை தேட ஆரம்பித்தான்। और बंदीगिरी के साथ साथ प्रभु को खोजने लगा। அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, वहाँ लिखा हुआ है, இயேசு மனதுருகி यीशु मन तरस खाकर அவர்கள் கண்களை தொட்டார், उनके आंखों को छुआ, உடனே அவர்கள் பார்வை அடைந்தார்கள்। तुरंत वे चंगे हो गए हैं। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। ஆமென்। வேதத்தில் பார்க்கிறோம், குருடர்கள் பார்வை அடைந்திருக்கிறார்கள், तो बाइबल में देखते हैं अंधे देखने लगते हैं, செவிடர்கள் அவன் கேட்டிருக்கிறார்கள், बगरे सुनने लगते हैं, கொன்னை வாயுடையவன் சுகம் அடைந்திருக்கிறான், गूंगे बोलने लगते हैं, குஷ்டரோகி சுகம் அடைந்திருக்கிறான்। कुष्ठ व्यक्ति चंगे हुए हैं। அப்போ முதலாவது ஆண்டவராக இயேசு உன்னை தொட விரும்புகிறதனுடைய நோக்கம் உன் வாழ்க்கையை குணப்படுத்த விரும்புகிறார்।
परमेश्वर इन सबको चूक के चंगा किया, आज भी आपको चूक के चंगा करने के लिए अगर वो चाहता है, इसका मकसद है वो आपको बदलना चाहता है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। praise the Lord. இயேசு உன்னை தொடுகிறார். यीशु आपको छुएगा। இரண்டாவதாக दूसरा, யாக்கோபை குறித்து பார்க்கிறோம். याकूब के विषय में जानते हैं। யாக்கோபு இரவு முழுவதும் याकूब रात भर போராடி அங்கே ஜெபிக்கிறார். उसने और प्रभु से लड़ता है, प्रार्थना करता है। தேவ சமூகத்திலே போராடி ஜெபித்த பொழுது परमेश्वर के सम्मुख में उसने लड़कर प्रार्थना करने लगा। தேவன் யாக்கோபை தொட்டார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लिखा है कि परमेश्वर याकूब को छुआ करके लिखा है। என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய उसने कहा कि मुझे जब तक तू आशीष नहीं करेगा, நான் உம்மை விட மாட்டேன் என்று சொன்னார். तब तक मैं तुझे न छोड़ूंगा करके कहा। அப்பொழுது ஆண்டவராகிய தேவன், तब परमेश्वर जो है, நீ இனி இஸ்ரவேல் எனப்படுவாய், आज तुम इस्राएल ठहरोगे। யாக்கோபை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார். याकूब को परमेश्वर आशीष किया। ஹalleluya हालेलुया। இரண்டாவது இயேசுவை தொடுகிற முகாந்தரம், दूसरा, परमेश्वर आपको छूने का मकसद है, இயேசுவை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். यीशु आपको आशीष करना चाहता है। இயேசு உன் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். यीशु आपका परिवार को आशीष करना இயேசு चाहता உன் है। பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். प्रभु आपके बच्चों को आशीष करना चाहता है। ஒருமுறை மலை பிரசங்கத்திலே एक बार उसने पहाड़ का संदेश में இயேசு அனைவருக்கும் போதனை முடித்த பின்பு प्रभु प्रचार खत्म करने के बाद இவர்கள் பசியோடு போக வேண்டாம் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்க ये விரும்பினார். लोग भूखे नहीं जाना बोलकर उन्हें भोजन खिलाया। அப்பொழுது 5 அப்பத்தையும் 2 மீனையும் எடுத்து இயேசு அதை தொட்டு ஆசீர்வதித்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. तब उसने 5 रोटी 2 मछलियों को छू कर आशीष किया करके लिखा है। ஆசீர்வதித்த பொழுது जैसे उसने आशीष किया, 5000 புருஷர்கள் அதை பகிர்ந்தார்கள். वहां पर 5000 केवल पुरुष लोग आते थे। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। இன்றைக்கு உன்னுடைய குடும்பத்திலே, आज आपका परिवार में, இன்றைக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையில आज आपका जीवन में குறைவுகளோடு வந்திருக்கலாம். अगर आप घटी में आए होंगे, ஒரு சிறிய நிலைமையில கடந்து வந்திருக்கலாம். आप छोटे चीजों में से लेके आए होंगे। எனக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லையே, आप बोलेंगे, गरीब होकर के आए होंगे कि मुझे आशीष नहीं है, எனக்கு ஒரு வளர்ச்சி இல்லையே, मेरा उन्नति नहीं है, எனக்கு ஒரு பெருக்கம் இல்லையே मुझे एक बढ़ोतरी नहीं है, என்று கண்ணீரோடு வந்திருக்கலாம். शायद आप आंसू के साथ आए होंगे। இயேசு உன்னை தொடுவாரானால் यदि यीशु आपको छुएगा तो கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். प्रभु आपको आशीष कर देगा और करना चाहता है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। Luke chapter 7:14. लूका रचित सुसमाचार उसका 7 का 14 को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 का 14 पढ़िएगा जी। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। கிட்ட வந்து उसने पास आकर பாடையை தொட்ட பொழுது आर्थी को जैसा छुआ, மரித்தவன் உயிரோடு எழும்பினான். मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। ஹalleluya. हालेलुया। மூன்றாவதாக இயேசுவின் வாழ்க்கையை தொட விரும்புகிற நோக்கம், तीसरा, परमेश्वर आपको छूने का मकसद மரித்தவனை உயிர்ப்பிக்க விரும்புகிறார். मरा हुआ को जिंदा करना चाहता है। உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே आपका जीवन में எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் कोई भी परिस्थिति में क्यों न हो, மரித்து போன நிலைமையில் இருக்குமே ஆனால் अगर वो मरा हुआ परिस्थिति में रहेगा तो இனி எனக்கு இது நடக்காது, अब मेरे लिए ये नहीं होगा, இனி இது எனக்கு சம்பவிக்காது, ये संभव नहीं है कि मेरे लिए होगा। இனி எனக்கு நடக்காது என்று சொல்லி आप सोचेंगे कि ये अब मेरे लिए संभव ही नहीं कि नहीं होगा ही नहीं। நம்பிக்கையற்ற நிலைமையில வந்திருப்பீர்களானால் आपका भरोसा अगर टूट करके आप आए होंगे, ஆண்டவராகிய இயேசு प्रभु यीशु मसीह உன்னை தொடும் பொழுது आपको जब छुएगा, மரித்த நிலைமையில இருக்கிற ஒன்றையும் आपका मरा हुआ जो बातों को இயேசு உயிர்ப்பிக்க விரும்புகிறார். खड़ा करने के लिए वो चाहता है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। ஆமென். ஒருவேளை शायद நீங்களும் आप जो है பாவத்தினாலோ पाप के द्वारा, அக்கிரமத்தினாலோ अधर्म के द्वारा நீங்க மரித்து போய் கிடப்பீர்களானால் आप पाप में मरे हुए होंगे, இயேசுவை தொட விரும்புகிறார். यीशु आपको छूना चाहता है। பலவிதமான
தேவன் விரும்பாத காரியத்திலே உன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு कई ऐसी बातें हैं कि जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है उसको आपने करते होंगे, இயேசுவை விட்டு தூரமாய் இருப்பாயானால் इस कारण आपने मसीह से दूर होंगे। இயேசு அருகிலே வந்து உன்னை தொட விரும்புகிறார்। लेकिन इन दिनों में यीशु आपका पास में आकर के आपको छूना चाहता है, உன் பாவத்தை மன்னித்து आपके पापों को क्षमा करके, உன் அக்கிரமத்தை மன்னித்து आपका अधर्मों को क्षमा करा के, உன்னை தொட்டு आपको छूकर உன்னையும் கர்த்தர் அந்த மரித்த நிலைமையிலிருந்து உயிரோடு எழுப்ப விரும்புகிறார்। आपको मृत्यु की दशा में से जिंदा कराना चाहता है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया, praise the lord। प्रेज द लॉर्ड। அடுத்ததாக தானியேலை குறித்து நம்ம उसके பார்ப்போமானால் बाद दानियेल के बातों में देखेंगे तो தானியேல் அங்கே ஒரு தரிசனத்தை அவர் பார்க்கிறார்। दानियेल वहां पर एक दर्शन देख रहा है। தரிசனத்தை பார்த்த பொழுது जैसा उसने दर्शन देखा, அவர் பலனற்றவராக वो माने उसने ताकत खो दिया திடனற்றவராக और दृढ़ को खो दिया, காலூன்றி நிற்க முடியாதவராக वो अपना बल पर खड़ा नहीं हो पाया, அங்கே காணப்படுகிறார்। वहां पर है। அப்பொழுது तब जो है ஆண்டவர் தேவ தூதனை அனுப்பி स्वर्ग दूतों को प्रभु ने भेजकर தானியேல் 10ஆம் அதிகாரம் दानियेल की किताब 10वां अध्याय 18வது வசனத்தை 18 वचन में देखेंगे। तब मनुष्यों के समान हाँ। किसी ने मुझे छूकर, तब मनुष्यों के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हिया बंधाया। फिर मेरा हियाव बंधाया। 19 को भी पढ़िएगा। और उसने कहा, और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, ये अति प्रिय पुरुष, मत डर, मत डर, मैं तुझे शांति मिले, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो तू दृढ़ हो और तेरा हिया बंधा रहे। और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा, जब उसने यह कहा, तब मैंने हिया बांध कर तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, अब का, अब का, क्योंकि तूने मेरा हिया बंधाया है। क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। ஹalleluya हालेलुया। हमें தானியேல் பலனற்று போன நிலைமையில दानियेल को हियाव टूटने के समय, எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்க முடியாத ஒரு நிலைமையில अपना बल पर वो खड़ा नहीं होने के समय, சோர்ந்து போயிருந்த நிலைமையில उदास के साथ खड़ा होते தேவ समय தூதன் அங்கே வந்து वहाँ एक दूत ने आकर के தானியேலை தொட்டார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது। दानियेल को छुआ करके लिखा है। தொட்ட பொழுது தானியேல் அங்கே திடமடைந்தான்। जैसा उसने छुआ है वो हियाव बंधा गया। இயேசு உன்னை திடப்படுத்த விரும்புகிறார்। यीशु आपको हियाव देना चाहता है। ஏ தானியேலை தொட்ட பொழுது நான் காலு ஊன்றி நின்றேன் என்று சொல்லுகிறார்। दानियेल को जैसे उसने छुआ तो लिखा है कि उसने अपना बल पर खड़ा रहा। அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, प्रिय परमेश्वर के लोगों, நீங்கள் எதிலே விழுந்து போனீர்கள்? तुमने किसमें गिर पड़ा है? எதிலே சோர்ந்து போய்விட்டீர்கள்? किसमें तुम्हें उदास हुआ है? குடும்ப பிரச்சனை நிமித்தமாக, क्या परिवार की समस्या में, வேலை நிமித்தமாக, क्या कमा नौकरी में, கடன் பிரச்சனை நிமித்தமாக, आप उदारी में, என்னால் திடனா நிற்க முடியவில்லை, आप अपना बल पर खड़ा नहीं हो पाते हैं करके बोलते होंगे। வாழ்க்கையை நினைத்தாவே கசப்பாய் இருக்கிறது, जिंदगी को देखते हैं तो बहुत कड़वाहट लगता होगा। நான் வாழலாமா? आप सोचेंगे कि हम जीना जरूरी है, எப்படி எதிர்த்து நிற்பது? हम कैसे सामना करेंगे समस्या को, எப்படி ஜெயம் பெறுவது? कैसे जीत को पाएंगे, என்னால் முடியவில்லையே, उससे हो नहीं पा रहा है। யார் எனக்கு கரப்பிடிப்பார்கள்? कौन मुझे हाथ पकड़ के खड़ा करेगा करके सोचे होंगे। யார் எனக்கு உதவி செய்வார்கள்? कौन मुझे मदद करेगा करके सोचे होंगे। இந்த கேள்வியோடு வந்து நிற்கிறவர்களே, अगर इस तरह का सवाल में अगर आप आए होंगे तो, இயேசு உன்னை தொட விரும்புகிறார்। लेकिन आज आपके लिए शुभ संदेश है कि यीशु आपको छूना இயேசு चाहता है। உன்னை திடப்படுத்த விரும்புகிறார்। यीशु आपको हियाव बांधना चाहता है। இயேசு உன்னை பலப்படுத்த விரும்புகிறார்। यीशु आपको दृढ़ कराना चाहता है। நீ கால் ஊன்றி நிற்க போகிறாய், आप अपना बल पर खड़ा रहेंगे, கம்பீரித்து நிற்க போகிறாய்। आप बड़ी ललकार के साथ खड़ा रहेंगे। எந்த இடத்துல வெட்கப்பட்டாயோ, जहाँ तूने बेइज्जती पाया है, எந்த இடத்துல அவமானப்பட்டு தலை குனிந்தாயோ, जहाँ तुमने अपमान होकर सिर झुका दिया है, யார் உன்னை ஏளனமாய் நினைத்தார்களோ, जिसने आपको तुच्छ समझ लिया है, அதே இடத்துல वही जगह पर இயேசு உன்னை यीशु आपको திடப்படுத்தி दृढ़ कराएगा। திடப்படுத்தி वो हियाव बनाएगा, கம்பீரமாய் நிற்க वहाँ போகிறார்। बड़ी जय जयकार के साथ खड़ा करेगा। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। இயேசு உன்னை தொடுகிறார்। यीशु आपको छुएगा। ஹalleluya हालेलुया। praise the Lord प्रेज द लॉर्ड। ஆமென்। அது மாத்திரமல்ல, न केवल वो है, மத்தேயு मत्ती रचित सुसमाचार
ये 17 17 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 6 उसका 6 वचन को पढ़ेंगे। चेले यह सुनकर चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए हाँ, और अत्यंत डर गए। अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो डरो मत। उठो डरो मत। हालेलुया। हालेलुया। இயேசு அங்கே வந்து यीशु पास आकर कहा, அவர்களை தொட்டு उसे छुआ பயப்படாதிருங்கள் और என்று कहा, उठो डरो मत। हालेलुया। हालेलुया। இயேசு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், यीशु आज आपको देख के कहता है, உங்களை தொட்டு சொல்லுகிறார், आपको छू कर कहता है, பயப்படாதிருங்கள், डरो मत। हालेलुया। हालेलुया। இயேசு உயிர்த்தெழுந்து यीशु जैसा जी उठकर சீஷர்களின் அறையில அமர்ந்திருந்த பொழுது चेले लोग अपना कमरा में थे। முதலாவது அவளுக்கு தரிசனமாயி पहली बार जी उठकर दर्शन दिया இயேசு उनको। சொன்ன வார்த்தை, यीशु उनको पगला दे के कहा, பயப்படாதிருங்கள், डरो मत, பயப்படாதிருங்கள், डरो मत। உன் வலது கரத்தை பிடித்து சொல்லுகிறேன்। मैं आपका दाहिना हाथ पकड़ के कहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ஆமென்। நம்முடைய சொந்தக்காரங்களோ हमारा जो रिश्तेदार का लोग कुटुंब लोग जो है எங்கேயோ இருந்து கொண்டு कहीं से कहीं तो रहेगा, வாட்ஸ்அப் அனுப்புவாங்க, वहां से व्हाट्सएप में भेजेगा, பயப்படாத। डरो मत। போன் பண்ணுவாங்க, फोन करके बोलेगा, பயப்படாத। डरो मत। हालेलुया। हालेलुया। இயேசு அப்படி அல்ல, यीशु वैसा व्हाट्सएप नहीं भेजेगा, பக்கத்துல வந்து आपका नजदीक आएगा, வலது கரத்தை பிடித்து आपका दाहिना हाथ को पकड़ेगा நீ பயப்படாத என்று சொல்லுகிறது और कहेगा कि तुम डरो मत करके बोलने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ताली बजा के ताली बजाने करेंगे। இயேசுவை தொட விரும்புகிறார்। यीशु आपको छूना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। அவர்களை தொட்டு சொன்னார், उनको छू के कहा, பயப்படாதிருங்கள்। डरो मत। हालेलुया। हालेलुया। ஆமென்। எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, प्रिय परमेश्वर के लोगों, எதை நினைத்து நீங்கள் பயத்தில் இருக்கிறீர்கள்? क्या बात लेकर आपने डरे हुए हैं? எதிர்காலத்தை குறித்தா, आपका भविष्य को देखकर, பிள்ளைகளுடைய நிலைமைகளை குறித்தா, आपका बच्चों का परिस्थिति देखकर, குடும்ப சூழ்நிலைகளை குறித்தா, पारिवारिक परिस्थिति देखकर, நீங்கள் விசுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு आप जिस पर भरोसा करने वाला प्रभु यीशु எந்த இடத்திலும் किसी क्षेत्र में भी நீ கண்ணீர் விடுவதற்கு அவர் அனுமதிக்க மாட்டார்। आपको आंसू बहाने नहीं देगा। உன்னை தைரியப்படுத்துகிறவர், वो आपको दृढ़ कराएगा। உன்னை திடப்படுத்துகிற ஒருவர் இருக்கிறார்। आपको दृढ़ कराने वाला यहोवा एक है। அவர் உன்னை தொட்டு சொல்லுகிற வார்த்தை, वो आपको छू के ये कहना चाहता है, பயப்படாதிருங்கள்। डरो मत। हालेलुया। 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 Praise the Lord. Praise the Lord. ஆமென்।